Assalamu alaikum class 2 students. I hope you all are fine and enjoying your summer vacations. I am your English teacher, Ms. Javeria. I am back with another exciting story from our English book. Today we are going to read our unit number 2, which is Faiza's Biscuit. Yes, I have also drawn some of the biscuits and cake. I must say the yummy cake. So you can guess it from the name of the story, that is Faiza's Biscuits. But the thing is, what's exciting about this? I know this is a story of Faiza and there must be something really yummy to eat like biscuits and cakes, but what's exciting? So let me tell you a little thing about this story, that this girl Faiza is poor. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, एंड दे केप्ट बेगिंग, दे केप्ट आस्किंग फ्रॉम द पीपल अराउंड देम, कुछ खाने के लिए दे दें या कुछ पैसे दे दें. लेकिन फ़ाइज़ा इज़ नॉट अ बेगर. फ़ाइज़ा इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, क्योंकि उसने कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ की और जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई. एंड हाउ वी कुड हेल्प समवन एल्स to change their life. We are going to read about this in our lesson. So let's help Faiza. We are going to read from our English book. So take out your English book, page number 9. Unit 2, Faiza's Biscuits, page number 9. So this story is different because in our previous lesson उसमें कोई इतनी ज़्यादा pictures नहीं थी, but this story is pictorial. Pictorial means picture narrated story. We can see so many pictures, और इन्हीं pictures को देखते हुए हम reading भी कर सकते हैं और guess भी कर सकते हैं कि what's going to happen in this story. So let's start with picture number 1. Faiza is poor. She is hungry. Her tiffin carrier is empty. Don't forget to hold your pencils and don't forget to underline the difficult words. So this is Faiza, this girl is Faiza and she is poor. She is hungry, वो बहुत ज़्यादा भूखी भी है, उसको भूख लग रही है. उसके पास टिफ़िन कैरियर है, you can see in her hand, जो कि बिल्कुल खाली है. उसके पास टिफ़िन तो है, there was supposed to be some food in it, but वो बिल्कुल empty है, वो बिल्कुल खाली है. Underline the words with me and try to read with me as well. A car is stopping and people are getting out. जो कार है वो स्टॉप हो गई है, रुक गई है, एंड पीपल जो लोग हैं उसमें से बाहर उतर रहे हैं. What is the girl saying in the car? Look, there is the restaurant. जो गर्ल है वो कह रही है कि वहाँ देखिए, वहाँ तो एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे. A little girl looks at Faiza. They all go into the restaurant. बट वो छोटी सी लड़की रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले, क्योंकि फ़ाइज़ा वहीं खड़ी थी बाहर ही, उसको देखती है कि लड़कियां क्यों खड़ी है, अंदर भी नहीं जा रही है. फ़ाइज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फ़ाइज़ा इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट, और वहाँ पे एक विंडो है और उसमें से यू कैन सी कि उसमें से खड़ी हुई वो देख रही है, और उस गर्ल को जो रेस्टोरेंट में चली गई है उसको कोई आइसक्रीम सर्व कर रहा है. And Faiza is looking at the ice cream and saying, oh, ice cream. She wants to eat it, and now I also want to eat the ice cream. Page number 10. The people are having fun. They are eating ice cream and biscuits. Seems like they are having a party in the restaurant, और सारे के सारे fun कर रहे हैं और ice cream खा रहे हैं. The table is full with different dishes. You can see biscuits, ice creams, drinks. The little girl is cutting a cake. You can see जो girl enter हुई थी उसकी birthday है and she is cutting a cake. You have to underline the difficult words. I am underlining the word cutting and little. जो नन्ही लड़की है, छोटी लड़की है, वो केक कट कर रही है. What are the others singing? जो दूसरे लोग खड़े हुए क्लैप कर रहे हैं वो साथ साथ कुछ सिंगिंग भी कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज इट्स हर बर्थडे. वी फॉरगॉट अबाउट फ़ाइज़ा. हम तो फ़ाइज़ा के बारे में भूल ही गए कि इस सारे
प्रोसेस में फ़ाइज़ा किधर थी? शी इज़ सिटिंग ऑन द वॉल एंड शी लुक सैड एज वेल. लेट्स रीड व्हाट शी इज़ थिंकिंग. फ़ाइज़ा इज़ सिटिंग ऑन द वॉल क्लोज टू द कार. जिस कार में वो लिटिल गर्ल आई थी, फ़ाइज़ा उस कार के पास एक वॉल के ऊपर बैठी हुई है. एंड शी ऑल्सो लुक्स सैड टू मी. आप देखो, आपको भी लगेगी वो सैड लग रही है. द पार्टी इज़ ओवर. Everyone is carrying party bags and wearing party hats. You can see party over हो गई है और सब जो है वो गिफ्ट्स लेके जो है वो घर जा रहे हैं अपने अपने घरों में, और वो पार्टी हैट्स पहनी हुई है उन लोगों ने. दे आर हैप्पी, ऑल आर हैप्पी, बट आई कैन सी सैडनेस ऑन फ़ाइज़ा's फेस. द रेस्ट आर हैप्पी बट फ़ाइज़ा इज़ सैड. The little girl goes to Faiza. She gives her a bag and a box. The little girl is so kind. वो फ़ाइज़ा के पास जाती है और उसको एक गुडी बैग हैंड ओवर करती है और साथ एक बिस्किट्स का पैक भी. फ़ाइज़ा opens the bag. She eats some cake. उस बैग में क्या था? Cake. Yes, the birthday cake of that girl. She does not open the box. What is in it? लेकिन उसने बॉक्स नहीं खोला. एंड शी इज़ इंट्रीग. वो सोच रही है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, बिकॉज शी इज़ राइट नाउ बिजी ईटिंग द केक, तो उसने बॉक्स नहीं खोला अभी. शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट. शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड. शी गोज़ डाउन द रोड. आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड बास्केट. उसके पास एक बास्केट होती है फ़ाइज़ा के पास, और वो उस बास्केट के अंदर अपना बिस्किट का बॉक्स रखती है और फिर उस बास्केट को अपने हेड के ऊपर रख लेती है और रोड पे जो है वो चलने लगती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या होता है? द फ़ाइज़ा आउटसाइड स्कूल. व्हाट इज़ शी डूइंग? हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर? फ़ाइज़ा आउटसाइड. फ़ाइज़ा आउटसाइड है मतलब बाहर एक स्कूल के. यू कैन सी द गर्ल इज़ इन द यूनिफॉर्म. What is she doing? वो क्या कर रही है फ़ाइज़ा? Who is buying something from her? और ये जो गर्ल है उससे क्या ले रही है? Because there is some money in her hand. 10 years later, 10 साल जो हैं वो गुज़र चुके हैं. एंड यू कैन सी फ़ाइज़ा इज़ अ बिग गर्ल नाउ. सीम्स लाइक उसने अपना एक शॉप ओपन कर लिया है और उसने बिस्किट सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं. दैट नेम इज़ फ़ाइज़ा's बिस्किट्स. वाओ. She is not poor anymore, this means, because she gets money. She sells the biscuit and gets the money. This means she is not poor anymore. Wow, that's a very great idea. And I like the concept, I like the story that she doesn't ask anyone for money. बल्कि उसने उन बिस्किट्स जो उस गर्ल ने उसको दिए थे उसको सेल किए और फिर उनसे कुछ जो उसके पास अमाउंट आई, मनी आई, उससे उसने और बिस्किट बाय किए. फिर वो बिस्किट सेल किए. फिर उसके पास इस तरह करते 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 उसके पास इतने सारे मनी कलेक्ट हो गए कि उसने एक अपनी शॉप ओपन कर ली. दैट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया एंड सीम्स लाइक फ़ाइज़ा इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल. सो वी आर गोइंग टू डू आवर बुक वर्क विच इज़ ऑन पेज नंबर 12, पार्ट बी. व्हाट आर द वर्ड्स दैट ऑल बिगिन विद वो? B-O, वो कौन से वर्ड्स? उसने हमें कुछ हिंट्स दी हुई एंड वी हैव टू गेस व्हाट्स दिस एंड वी हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड्स लिक्विड. वो कह रहे हैं वो ग्लास का बना होता है और कोई भी लिक्विड ही चीज़ जो है वो उसको होल्ड कर लेता है. व्हाट इज़ इट? आई थिंक अगर ये कोई ऐसी चीज़ है दैट मस्ट बी इन आवर किचन. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ग्लास की है एंड दैट होल्ड्स द लिक्विड, दैन दैट मस्ट बी इनसाइड आवर किचन्स. सो एंड स्टार्ट्स विद बो. दैट मस्ट बी बोल. जो हमारे किचन्स में बोल होते हैं जिसमें हम कोई लिक्विड जो है वो रख सकते हैं, दैट होल्ड, और फिर हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, यू कैन ऑल्सो डू दैट. There are some inside of your body. हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? That is bowel. B-O-W-E-L. That are our intestines that eliminates, excretes the material that is not required to the body. Not a girl, not a man, nor a woman. ना वो गर्ल है ना वो
मैन है ना वो वुमेन है, तो इट मस्ट बी द बॉय, BOY बॉय। स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज, जो स्ट्रॉन्ग होता है और फुल ऑफ करेज होता है, दैट इज़ नोन एज, दैट पर्सन इज़ नोन एज, दैट द पर्सन इज़ ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर है। सो दिस वॉज अ बुक वर्क and on page number 13 there are some of the words written. You have to read them so that you can practice them and can enhance your reading. I can read it once for you and then rest you can do it by yourself. Poor, biscuits, read after me students, cake, party, restaurant, friends, hungry, tiffin carrier, games, laughing, I hope you are reading with me, ice cream, kind, selling, yes, we are done with our book work, but there's some homework for you on page number 15. Yes, this is a project. Faiza takes her business online because Faiza is a very smart girl. उसने अपनी शॉप ओपन कर ली है और because she knows कि आजकल जो है वो everyone is doing the online things, और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे कि माइट भी उनकी फैमिली में या उनके अपनी फादर या फ्रेंड्स में से कोई ऐसा होगा जो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो रन कर रहा होगा, तो आप फ़ायज़ा की हेल्प कर सकते हो। बट हाउ, वो अब आप इसको रीड करोगे इन द होमवर्क और फिर उसको आप हेल्प करोगे। दिस इज़ ओनली ऑन पेज नंबर 15, यू डोंट हैव टू टर्न द पेज. So you have to read this and help Faiza. And how you could help Faiza, you will get to know once you read this. Moving on. So students, this was our unit 2. We have read it and we have done the book work as well. So this was Faiza, and Faiza is really smart. Plus you have to do your homework to make Faiza earn more money. How? Online. But how you could help her, it's on you. You have to read the paragraph and then you can help her. You can also get help from your parents or the one who teaches you. And don't forget to tell the story ताकि दूसरे भी इससे कुछ अच्छा सीख सके, जैसा कि हमने सीखा कि फ़ायज़ा ने कितनी स्मार्टली अपना बिज़नेस जो था वो ओपन कर लिया. So this was our lesson, and I will ask you to read the lesson and learn it, the difficult words, and enhance your vocabulary and pronunciation skills. So take care. Allah Hafiz.